Hello, everybody. Welcome to the Career Launcher YouTube channel. We bring to you a very, very special episode today. Generally, we get an opportunity to go ahead and interact with students who've gone ahead and cracked the CAT exam or other such entrance examinations, and then have gone ahead and cracked the interview to get into a top B school. Today is slightly different. While the person that I'm going to interview today has gone ahead and done that, but we're interviewing him 1 year down the line, which means not only has he done all of what I've just stated, he's also spent close to 12 months at IIM Ahmedabad. So there's a lot of stories that he's going to bring onto the table about IIM Ahmedabad, about how it's gone there, and whether the hawa around IIM Ahmedabad is all true or not. So, join me in welcoming Anuj to our session today. Anuj, welcome. Thanks, Gautam. I hope to bring you a lot of Hawaiian stories. Lovely, look forward to that. So, Anuj, let's start right at the beginning. A little bit about your profile. So, I know class 10 in 2012, class 12 in 2014, undergraduation BHU, typical brilliant student, engineering. MBA क्यों दिमाग में? Why is it that engineers want to do an MBA यार? यार अपनी फील्ड में इंजीनियरिंग में मन नहीं लगता ना हमें उतना. मतलब आई थिंक कि इंजीनियरिंग in our country is less of a choice, more of a sort of sure short career path जो parents usually with all the right intentions आपको push करते हैं. I don't think कि 10th के बाद we got to choose, and especially जैसे I was an electronics engineer and यार मुझे कभी मज़ा नहीं आई. मतलब okay, it can be said कि मैंने शायद उतना ध्यान भी नहीं दिया. शायद ध्यान देता तो मज़ा आती, but for me जैसे 11th 12th we were so exhausted. चलो I should talk about myself कि I was so exhausted after preparing for JEE कि I didn't have it in me to study more at that point of time when I entered my graduation to actually put myself into learning electronics. So that may be a cause कि initial months if you don't pick up the syllabus, if you don't listen to the classes, you will start falling back, and then it's very difficult to recover and you start losing interest. So that happened with me कि in the first months itself I was clear in my mind that I'm not doing electronics, I'm not pursuing electronics in life. So what's the other scenario? You either go for MBAs or you go for a startup or you go for UPSC. Perfect. ठीक है. So I did try MBA in my last year of college. वहाँ थोड़ी बात नहीं बनी. मतलब it was good but not to the extent I wanted. So I'll cut you there. So MBA was through a process of elimination, or MBA was ठीक है, these are 3 first choices. Let's tick this box first. This is what I want to do first. I liked finance a lot. मतलब बहुत शुरू से. Exposure कब आया? When do you get to know what finance is? पापा बैंक में है. मेरी एक्चुअली पूरी फैमिली किसी ना किसी बैंक में है. Interesting. दीदी इज इन फेडरल बैंक, जीजा जी इज इन बैंक ऑफ इंडिया, पापा की फैमिली SBI, PNB, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स आर कवर्ड. So बचपन से वही. Yeah. So banking is something I got exposed. शूटिंग में क्या बस CNBC आवाज. Yeah, actually yeah. 3:30 बजे तक तो CNBC आवाज ही चलता है. तो तो वो है कि एक्सपोजर काफ़ी शुरू से मिला था. ऑब्वियसली नॉट द काइंड विच आई एम गेटिंग नाउ, क्योंकि ये थोड़ा गवर्नमेंट बैंकिंग एंड वो रिटेल बैंकिंग है जो मेरे घर में जिसका मुझे चीज़ें सुनने में आती हैं. तो somehow I always felt comfortable in finance, or I was good at it mostly because it's a practical application of economic concepts only ना यार. Economics बहुत ज़्यादा logical है. Once you read it, understand it, you'll never forget it. And same goes with maths. कि मेरी maths अच्छी थी तो I always, and ये भी होता है यार कि if you are good at something ना, you start liking it, क्योंकि you get appreciation. It's like a self-fulfilling prophecy. Yeah, exactly. तो finance was something I was always comfortable with, although you are right, passion comes after exposure. मैं उतना ज़्यादा exposed नहीं था, but still I always felt कि यार MBA करते हैं, finance में चले जाएंगे, मतलब I'll be good in that. तो वो था idea, although that time did work out. Yeah. So 2017, last year of your undergrads is when you wrote CAT for the first time, right? Percentile? 99.77. So you are saying it didn't work out? 99.77 and it didn't work out. ये भी बोलो ना कि मेरा बीटेक में पॉइंटर कितना था, तो 77 was not sufficient to get calls. Profile. So but you ended up getting good calls, right? Yeah. You did. Calcutta and below everything. But we were just having a short chat before this, and you were telling me you didn't go for the interview. यार मैं बच्चा था, मैं 21 का था. मतलब now I feel कि it was the wrong call.
नॉट बिकॉज आई शुड हैव डन MBA एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट कैलकाटा पे इतना बड़ा ईगो इशू लेने की ज़रूरत नहीं थी कि अहमदाबाद की कॉल नहीं है. कैलकाटा आई थिंक इट्स अ गुड इनफ इंस्टीट्यूट, ऑलमोस्ट यार इट्स इक्विवेलेंट टू अहमदाबाद. ABC में मुझे लगता नहीं कोई खास डिफरेंस है. और जस्ट बिकॉज थोड़ा सा मैंने अपने दिमाग में बना लिया था, विच वॉज नॉट फेयर. आज अगर इस बार अगर ऐसा होता कि मुझे A और B की कॉल्स नहीं होती, C की होती, तो मैं डेफिनेटली जाता. एंड आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी एट कैलकाटा. तो हाँ, उस समय मैं नहीं गया. उस थोड़ा वही यार अहमदाबाद का थोड़ा ज़्यादा बना लिया था मैंने अपने. So good. मतलब quite interesting. So 2017 CAT happens. 2018 results come out. You have a Calcutta call. You decide not to go. Don't go for the interview. 2018 college ends. If I'm not wrong, you eventually went into you joined Ahmedabad in 2023. Yeah, 5 years. So 5 years. क्या किया भाई 5 साल चिल मारा जिंदगी में? नल्ला था मैं. मैं UPSC कर रहा था. मतलब स्टार्टिंग इन 2019 जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मैंने टोटल 4 अटेम्प्ट्स दिए. बीच में एक अटेम्प्ट इसलिए गायब हुआ है क्योंकि नहीं, मैंने 18 में फर्स्ट दे दिया था प्रीलिम्स. Okay. एंड So while preparing for CAT. नहीं, कैट तो दिसंबर 2017 December, so 18 के जून में आपने 18 प्रीलिम mid, दे yeah, सकते हैं. correct. हाँ, बीच में एक साल ड्रॉप हुआ था. मतलब But when do you prepare for your prelims? वही कॉलेज के आखिरी 1-2 महीने. So basically CAT March, result आया. हाँ. Jan Feb March. हाँ, जैन फेब रोने में बिताया और मार्च से थोड़ा या Perfect. तो उस समय अपना ये वाजीराम एंड वो सब है ना, उनके मटेरियल ले आया था मैं. उस समय मैंने कोचिंग स्टार्ट नहीं करी थी, मैं कॉलेज ले आया था मटेरियल, तो वो सब देखना स्टार्ट कर दिया था. तो 18 में मैंने फर्स्ट प्रीलिम दिया था. Okay. 18, 19, फिर 20 में मैंने नहीं दिया था. Okay. और 21 एंड 22. And you cracked all right. Prelims सारे cleared निकल every गए, day. हाँ. And then क्या हुआ? मेंस कभी नहीं निकला मेरा. आई डोंट नो यार, मैंने आज तक फिगर आउट नहीं किया. मतलब मेरा तो UPSC छोड़ने का मेन रीज़न यही था कि यार इफ़ आई हैव नॉट फिगर्ड आउट कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, तो फिर तो यार बार बार अटेम्प्ट देने का मतलब यही ना कि आप गैम्बल कर रहे हो. तो आई वॉज एक्चुअली नेवर एबल टू फिगर आउट कि यार गलती कहाँ हो रही है. What are the closest you ever reached to clearing the cutoff? I had 724 in my last attempt and the cutoff was I think 729 Oh, या 731 था. मैं exactly याद नहीं है, ऐसे कुछ था. 7-8 नंबर का very गया. close, very close. हाँ. So तब नहीं, since it's your last attempt, even more interesting, the closest you ever reached was your last attempt and you decided नहीं, अब नहीं. नहीं, दिस वाज माय सेकंड लास्ट अटेम्प्ट. मेरे जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें कम हुए थे. हाँ, दैट वाज मोर That's डिसअपॉइंटिंग. what I was wondering. हाँ. Because generally हाँ. होगा ये है तो यार one more. हाँ. One more it might happen. हाँ, नहीं, दैट वाज मोर डिसअपॉइंटिंग कि मेरे लास्ट अटेम्प्ट में कम हो गए थे लास्ट टाइम से. एंड इवन मोर सो मेरा जो फेवरेट सॉर्ट ऑफ एग्जाम पेपर हुआ करता था, इंटरनेशनल रिलेशंस. आई वाज ऑलवेज गुड एट इट. आई वाज एमिंग फॉर द फॉरेन सर्विसेज. तो वो सॉर्ट ऑफ दैट वाज माय थिंग. और उसमें मेरे थर्ड अटेम्प्ट में मुझे याद है 156 था स्कोर, जो कि वॉज शुभ्रा मैम टोल्ड मी कि इट वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया. एंड अगले साल 106 था. 50 नंबर कैसे कम हो सकते हैं यार, कम ऑन, साल भर पढ़ने के बाद. तो आई फेल्ट कि यार इतनी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है इस एग्ज़ाम में. एक तो ये भी है यार कि आप सब्जेक्टिव आंसर्स लिख रहे हो. तो व्हाट हैपन्स इज़ कि अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड. कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसराइल के बारे में लिख रहे हो, जापान के बारे में लिख रहे हो, इंडिया का नॉन अलाइंड मूवमेंट अगर आप पुश कर रहे हो कि वेदर वी शुड बी टिल्टेड टुवर्ड्स US और रशिया, आई थिंक जो evaluators होते हैं they too are, you know, they too have an So ideology. their own opinion हाँ. does play a part. I think so, क्योंकि although this might sound like an excuse, लेकिन I have not figured out any other reason, especially अगर हम उस पेपर की बात करें. तो क्योंकि I used to see my answer sheet and it was like यार बढ़िया आंसर्स, इवन मैप बना देता था मैं. ठीक है, मतलब मुझे हर कंट्री का शेप याद थी क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस थी कि मैं हर कंट्री का विद इन 2-3 सेकेंड्स उसका मैप बना देता था. 3-4 मेजर सिटीज़ मार्क कर देता था, उनकी इंडस्ट्रीज़ मार्क कर देता था कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री. मतलब माई पेपर यूज टू बी रियली गुड, स्पेशली IR वाला पेपर. और उसमें मार्क्स कम होना वॉज रियली सरप्राइजिंग. तो आई थॉट कि यार मतलब अब और अटेम्प्ट्स देना विल बी अ गैम्बल. और एक टाइम के बाद घर वाले भी ये कहते हैं कि अबे IIT भेजा था कुछ. Yeah, so that's Yeah. a very interesting point, right? IIT, हाँ. 4.5-5 years gone. हाँ. What kind of mental pressure at home, बहुत or was there a ज़्यादा. lot of support? How was it? सपोर्ट होता है डेफिनेटली, बट यार आपको ये भी पता होता है कि दैट सपोर्ट इज़ नॉट अनकंडीशनल. मतलब आप उसको मिसयूज़ नहीं कर सकते. जैसे
nobody is going to say it out loud कि यार क्या कर रहा है, ठीक है, but everybody feels so, ठीक है. अब जैसे if you start noticing कि you know your parents have kind of reduced hanging out with their friends जितना वो पहले करते थे, तो that basically the reason behind it is कि they have to answer questions like कि यार अनुज क्या कर रहा है, और उसका भी वो एग्ज़ाम हुआ था, वो कैसा हुआ, उसमें कुछ हुआ कि नहीं. तो मतलब you start picking up on the little things. Nobody ever said to me on my face, but होता है यार कि you know socially you start वो you know आपके लेजर पे रेड आने लगता है. करेक्ट. तो देर इज़ अ लिमिट, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, यू नो, गोइंग आफ्टर योर ड्रीम्स, स्पेशली एज अ मिडिल क्लास फैमिली. आई डोंट थिंक इन्फिनिट रोप नहीं है किसी के पास, ठीक है. तो एंड फोर्थ अटेम्प्ट वॉज काइंड ऑफ मतलब जहाँ पे पीक कर गया था वो, कि इसके बियॉन्ड पढ़ना पॉसिबल ही नहीं था. नॉट बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मोस्टली बिकॉज इट वॉज सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल, एंड नो बडी एक्चुअली टोल्ड मी दैट, बट हाँ आपको पता होता है. हाँ, अंडरस्टैंडेबल. सो देन ठीक है, हो गया. व्हाई कमिंग बैक टू कैट देन? व्हाई कमिंग बैक टू एन एमबीए? I started teaching at Vidya Mandir classes. तो वो मेरे घर के पास है पीतमपुरा में, तो I was really enjoying that. मतलब that was a very viable option. But देखो teaching में ना there is one concern, especially if you are teaching a JEE advanced batch, कि yeah, it's an excellent job, very rewarding, or money wise it's great, but one problem is you'll be teaching the same stuff for 20-30 years. I mean, there will come a point in life when you'll be reciting those formulas in your sleep, ठीक है. So and it doesn't change, there is nothing dynamic in permutation combination, okay. So I thought कि this may not be a viable plan for the, you know, for a few decades. And यही 1-2 साल का टाइम है when you can switch. If you spend, I was 25 when I joined this coaching, 25 and a half. और अगर 3-4 साल और यही कर लेता तो Then फिर very difficult to get out. हाँ, I don't think कि कुछ और वहाँ पे फिर possibility होती. So even now I feel कि if I have to someday return to the education industry, that's an option. Post MBA और भी बहुत ज़्यादा तरीके खुल जाएंगे. But at that point of time, that was not an option. तो और ऑप्शन क्या था, मतलब मुझे अपनी बीटेक की चीज़ें ज़्यादा आती नहीं है, ठीक है. तो मैं अपनी उस आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जा नहीं सकता था, और यूपीएससी निकला नहीं, कोचिंग में ज़्यादा टाइम करना नहीं चाह रहा था, तो ज़्यादा बुझा नहीं. So process of elimination. हाँ, और फाइनेंस एक हमेशा से कंफर्ट रहा है. करेक्ट. तो और मैंने ड्यूरिंग माई आरबीआई प्रिपरेशन, जैसे IIBF एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो दीदी भी बैंक में है, दीदी जी लोग, तो ये सब लोग, उनके बड़े सारे डिप्लोमाज एंड कोर्सेज होते हैं, वो करते रहते थे. Got it. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि अच्छा वो कर रहे हैं, बुक पढ़ी है घर पे, तो भर दो फॉर्म. मतलब पापा कहते थे खाली तो बैठे हो, ठीक है. खाली मतलब ऐसा है कि प्रीलिम अभी 5 महीने दूर है, तो आप उतना ज़्यादा नहीं पढ़ रहे होते हो. करेक्ट. तो भर दिया फॉर्म, ठीक है, देख ली बुक 2-3 दिन. तो इस तरह से मैंने बड़े सारे डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट्स ले रखे थे. तो मुझे फाइनेंस कभी छूटा नहीं था मेरा, वो हमेशा चल रहा था. Constantly there in the हाँ. background. तो आई थॉट कि चल ठीक है यार, मतलब इट विल मेक ऑल द सेंस, मतलब यू नो पीसेस इन द पजल विल फॉल टुगेदर. Yeah. तो somehow it made sense. Perfect. So any specific preparation then for CAT 2022? देखो वैसा है कि मेरा VARC really got improved क्योंकि I have been reading newspapers, multiple newspapers for 5 years. So once you do that, I don't think कि, yeah, I'm sure कि people do a lot of stuff which actually might be necessary in that case, in their case, but it was fine with me. You know, that newspaper thing was sufficient. I did some mocks, that was definitely helpful because things had changed a lot since मैंने जब CAT दिया था. Correct. 2017 it used to be a 3-hour paper and now it was 2 hour too. And then even the type of questions have changed a lot. Absolutely. So my old preparation, मतलब when I gave my first mock with just my old preparation, just to get into the hang of things. Firstly, I was for the 10 minutes I was freaked out कि अरे पेपर तो 2 घंटे का है, ठीक है. And then the type of questions were new. So yeah, but a couple of mocks and newspapers did it for me. DILR, yes, definitely a lot of practice is needed. जितने ज़्यादा puzzles solve करो, उसमें भी मेरा एक थोड़ा सा व्यू है कि यार
if you have done 100-150 puzzles Hmm. and you have written down what the trick was in each of them, and if you once you revise that copy, Yeah, very important. take it, and you keep revising that, Absolutely. I don't think anybody is making new questions. In sync. Okay, but there are 20-30 tricks. Totally. That's the universal set. Hmm. There is no trick beyond that, and I don't think question makers actually put a lot of time or effort into making sort of new tricks. So they use one of that stuff. So once you have figured that out and you have covered that, universal set, beyond that it's just practice and speed and So in your CAT DLR, were you able to attempt all 4 sets? Yeah. All 4? Yeah. Full 60 आ गया. ये मुझे याद नहीं, साल भर हो गया. No, but still. मतलब मेरा परसेंटाइल 99.95 था DILR में. So तो आई एम नॉट श्योर 50 plus. हाँ. In that range probably. हाँ. Nice, interesting. So basically attempted the whole paper, या which in itself is a huge feat. Yeah. 4 sets in 40 minutes, not very हाँ. easy. एक ये भी होता है कि कभी कभी आपको ट्रिक समझ में ना आए ना, तो यू कैन यूज Calculated guess. हाँ वो भी होता है, बट मैं वो बोल रहा था कि ब्रूट एफर्ट भी लगा सकते हो. Correct. जैसे ब्रूट फोर्स टेक्निक में मैं क्या करता था कि जैसे अगर जैसे वो नहीं होती पजल्स की, जैसे मान लो कि 8 घर हैं, उनमें 8 लोगों को फिट करना है और आपको Sure. कुछ कंडीशन Arrangement, yeah. तो आपको 3-4 तो आप शॉर्ट आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये. फिर आपको कोई एक जगह पे आप स्टक हो गए कि यहाँ पे या तो ये होगा या ये होगा, Take one. तो आप साइड पे लिखो, वहाँ पे एक लिख के सॉल्व कर दो. अगर वो नहीं हुआ तो वहीं पे काटो उसको और दूसरा लिख के सॉल्व कर दो. Correct. मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है वहाँ पे. यूज डिफरेंट कलर्ड पेन्स, लेकिन But that's difficult, right? In CAT, they give you just one pen. अरे अलग अलग कलर के पेन मिल रहे होते हैं वहाँ पे, ले लो, ऐसा कुछ नहीं है. वो लोग थोड़ा Blue and black. हाँ White मारो. ब्लू एंड ब्लैक तो मिल जाता है. ब्लैक गिरा तो क्या दो पेन खो गया. मिल जाता है बहुत लोग. Interesting. हाँ. No, it makes sense. We constantly state that, you're going into the exam, you have your admit card. When you have your admit card, nobody is stopping you from measuring the sides. And you can use that as an estimation on your screen. हाँ. कि ये और ये साइड तो इक्वल लग रहा है. हाँ. तो हो सकता है वो बनाना ना चाह रहा हो, पर एक्चुअली ये जो ये लोग ने रिस्ट्रिक्शंस दिए will only fit in an equilateral triangle. So हाँ. let me assume it's equilateral and try and solve. Okay. Answer आ गया तो वही हाँ. होगा. So it's exactly like that. I think हाँ. it's a trick. It's हाँ. and it's something that you can use. You're not turning around and हाँ. stating I'm doing something unethical. You're just trying something. अब जैसे मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर था उसमें 1-2 एंट्रेंस थी उस हॉल में. एक जगह पे वो ब्लू पेन दे रहा था, एक जगह ब्लैक पेन दे रहा था. You Perfect. just have to be little smart about Yeah, it. I think makes sense. हाँ. Interesting, smart. What about quant? यार क्वांट में मैं कुछ मतलब आई थिंक आई एम नॉट द राइट गाय टू मतलब गिव टिप्स. क्वांट मुझे इंट्यूटिवली आता है. मतलब क्वांट आई वाज एबल टू सॉल्व आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस विद 5-10 मिनट्स टू स्पेयर. Fabulous. तो आई वाज अ मैथ्स टीचर यार, कम ऑन. तो आई डोंट थिंक इट्स दैट फैबुलस. इट्स इयर्स ऑफ प्रैक्टिस. तो Still, 22 in 40 minutes, not a joke. And you're saying 5-10 minutes left, so you're basically solving at the rate of about what? Each question in about a minute. देखो ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं था. मैं आपको बताता हूँ. रियलिटी है कि मुझे इतना प्रेशर था कि मैं अपना हैंडकरचिफ गीला करके गले में बांध के पेपर दे रहा था. ठीक है. तो क्या क्रिकेट डेजर्ट Sort of, में yeah. क्रिकेट चल रहा है, क्योंकि आइस पैक चाहिए इन एन एयर कंडीशन रूम. ठीक है. क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि अगर मुझे ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है तो मतलब वो मेरा टेम्परेचर सॉर्ट ऑफ बढ़ जाता है, कान लाल हो जाते हैं और मुझे फील हो जाता है मतलब बर्निंग सेंसेशन. तो आई नीडेड टू डू दैट. तो ऐसा नहीं है मतलब सिचुएशन काफ़ी खराब थी. एंड if you put in the right context कि मेरा Yeah. सिनेरियो क्या चल रहा Absolutely. था, that exam was sort of a do and die. and मैंने घर पे नहीं बता रखा था कि मैं वो कैट दे रहा हूँ. मतलब that was the extent of it कि मतलब once you disappoint your near ones a sufficient number of times, you think कि यार let's spare them Let's not do this it last again. time. ठीक है. तो मेरे घर पे किसी को नहीं पता था कि मैं कैट दे रहा हूँ. I told them after I got confirmation कि मेरा 100 आ रहा है. But Wow. after that आंसर शीट वो रिलीज नहीं The होती है. response sheet. हाँ. So प्रेशर था. ठीक है. क्वांट हेल्प मी अ लॉट डेफिनेटली. हाँ उसमें pulled up your marks a lot. हाँ डेफिनेटली. Must have been close to 100 percentile. हाँ क्वांट पे 100 था. Quant was 100, yeah. हाँ. Perfect, lovely. When did you actually realize, हाँ ठीक है, 100 percentile, I've probably reached the summit. ये है Mount Everest, I've reached there. When do you realize? When did it actually hit home? अच्छा दो पार्ट में हुआ था आई वुड से. एक तो जब मैं यहाँ से वापस जा रहा था घर,
तो आई हैड अ फेयर एस्टिमेशन कि मेरा 150 से 160 के आसपास कुछ बनेगा. You already knew that 150, 160 out of 198. हाँ. Wow. लेकिन आई डेंट नो व्हाट इट मीन्स. Correct, क्योंकि obviously. मेरा इतने साल से छोड़ा हुआ है, आई डेंट नो कि लास्ट टाइम कितने पे क्या परसेंटाइल आया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था. मतलब आई हैड एस्टिमेटेड दैट नंबर सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ कि मेरे कितने अटेम्प्ट्स हैं, एंड आई हैड अकाउंटेड फॉर लाइक 2, 3, 4 मिस्टेक्स ज़्यादा से ज़्यादा. यूजुअली मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहती है. तो और फिर उस दिन रात में शायद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वो वीडियो कोई रिलीज़ करी अपना एनालिसिस, एंड देन दे वर लाइक यार 125, 130 के आसपास वी एस्टिमेट 100% है. तो मुझे लगा ठीक है, मतलब एक इंस्टीट्यूट है. No, everybody did. We did it. Everybody, I think. हाँ, अगले दिन तक जब सबका आया ना, Yeah. तब आई थॉट कि अच्छा, मतलब ओके कुछ तो है. ठीक है, अब बस ये देख लेते हैं कि कुछ गलत तो नहीं करके आया हूँ मैं. तो Correct. उस समय पार्शियल हिट हुआ था. That हाँ. accuracy is, मतलब the attempt is there. हाँ, एक्यूरेसी and की बात आ जाए accuracy, तो हाँ. yeah. तो रियल हिट तब हुआ था जब वो, मुझे याद है, जो आपकी वो थी ना, आपकी नहीं, जो ऑफिशियल आंसर response sheet. हाँ, वो रिलीज हुई थी सुबह के टाइम. कुछ 10:30, 11 बज रहे होंगे. मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था कोचिंग. तो मैंने जहाँ जाने से जस्ट पहले वो देखी, और वो सारे वैसे ही था एस्टिमेट जो मैंने किया था. तो मुझे हल्का सा डिजी फील हुआ, मतलब हल्का सा चक्कर फील हुआ कि ओ माय गॉड. It's actually happening. हाँ, ठीक है. तो और मैंने घर पे नहीं बता रखा था. तो और मुझे लगा कि मैं हल्का सा, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपनी स्कूटी से वापस चलो. नहीं, ऑफिस जाने की स्थिति में था नहीं. मुझे लगा मैं नहीं चला रहा इस समय, और प्लस वो हाईवे या वो हाँ, MG रोड एंड ऑल अच्छा. दैट. तो मैंने पापा को बोला कि मुझे ऑफिस छोड़ा, मुझे कुछ थोड़ा ठीक फील नहीं हो रहा. तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ ठीक फील नहीं हो रहा. तो उस दिन मुझे छोड़ के आए थे. तो बट हाँ, उस समय भी मैंने नहीं बताया था मुझे. बट आई वॉजंट श्योर कि एक्चुअली आई वॉज होपिंग, उस समय UPSC मेंस का रिजल्ट आने वाला था. हाँ. तो आई वॉज होपिंग कि मेंस इस बार क्लियर हो जाए. अप टिल जैन एंड, नहीं रिजल्ट कब आया था मेंस का, मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, आई वॉज स्टिल होपिंग कि मेरा मेंस क्लियर हो जाए. MBA मेरा बैकअप है, ठीक है, बट मेंस क्लियर हो जाए. Sure. टर्न आउट यार उस साल भी मेंस क्लियर नहीं हुआ. और तब मैंने घर पे बता दिया था कि मैं ऑफिस में बैठा था जब मैंने रिजल्ट देखा मेंस का क्लियर नहीं हुआ. तो मैं घर आया और फिर मुझे लगा कि यार अब इनको ये बताऊंगा कि हाँ. मेंस क्लियर नहीं हुआ है. तो मैंने दोनों चीज़ें साथ में बताई, नहीं मेंस क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन लोड मत लो, मतलब ये है. ये है, और बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत- मतलब उससे कंपेरेटिवली ज़्यादा बड़ा है. तो बहुत बड़ा बैकअप है मेरे पास. मतलब टू द एक्सटेंट कि दैट प्रोबब्ली वो शुड हैव बैकअप है कि फ्रंट अप है पता हाँ, नहीं. I don't- yeah. Nice, interesting. बट वो दिन यार काफी, how was it at home? हाँ मतलब काफ़ी सेलिब्रेटरी था. लेकिन थोड़ा यार ये भी कंसर्न था कि यार इतनी ज़्यादा चीज़ें जब ख़राब हो जाती हैं ना, तो देन यू स्टॉप फीलिंग, मतलब यू ऑलवेज स्टार्ट फीलिंग कि यार अब क्या गड़बड़ हो सकता है. You are worried that should हाँ. I be happy because what wrong is around the corner? एग्जैक्टली. Right? Yeah. तो उस समय अब ये कंसर्न था कि 5 साल का गैप है. बीटेक के मार्क्स वन ऑफ द लोएस्ट, ठीक है, 6 पॉइंटर. आई वॉज लास्ट इन क्लास, प्रॉबेबली इन द बॉटम 10 और समथिंग. तो ये कंसर्न था कि प्रॉबेबली हो ही ना इंटरव्यूज़ में. एंड फिर ये था, आई वॉज टेलिंग देम कि यार ना हो तब भी FMS हो जाता है, क्योंकि उसमें 70-80% आपका 10th 12th एंड कैट का होता है. टर्न्स आउट कि इंटरव्यूज क्लियर हो गए, FMS क्लियर नहीं हुआ. Yeah, sure. तो या We'll get to that, but I'll just come back a little. You know, just हाँ. take one step back. While you did not, put in a lot of effort in your 2022 हाँ. attempt, what are some of the previous experiences? One, during your earlier preparation. Second, during the 5-year gap when you were preparing for UPSC. What do you think were those 2-3 things that really helped you? देखो इंग्लिश में तो यही है कि जितना ज़्यादा डाइवर्स मटेरियल आप पढ़ रहे हो उतना ज़्यादा आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है. तो आई थिंक कि UPSC के चक्कर में 50 टाइप के न्यूज़पेपर, 50वें टाइप के रिसर्च आर्टिकल्स, क्या क्या पढ़ डाला फ्रॉम इतने ज़्यादा सोर्सेज जो अब मुझे शायद याद भी नहीं होंगे. तो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. 17-18 के टाइम पे जब मैं प्रिपेयर करता था VRC, मुझे बहुत स्ट्रगल होता था, मतलब टिपिकल इंजीनियर सॉर्ट ऑफ. Sure. इस बार कोई इशू नहीं आया. तो आई थिंक दैट वाज द, मतलब The most important part, हाँ. which was taken care of. हाँ. DILR का ये था कि DILR में क्या किया था मैंने. DILR में मैंने वही है यार, मैंने करीब
आई थिंक मैं 2-3 दिन लंबा बैठा था, मतलब 12-13 आवर्स, एंड आई डिड एज मेनी पजल्स एज आई कुड फाइंड ऑनलाइन जितना हो सकता है, और मैंने वो एक कॉपी बना ली थी, करीब 150-140 कुछ पजल सॉल्व Sets करी थी। यूट्यूब पे भी बड़ी सारी वीडियोस मिल जाती हैं, कोई पढ़ा Right. रहा होता है कुछ, ठीक है, तो मैं उनका मतलब स्क्रीनशॉट ले लेता था और मैं लेके बैठ जाता था। So it's not the video you were after, it was content you were after. It was और set just आ the जाए, question. set आ जाए. ठीक है, तो उनके स्क्रीनशॉट लेके मैं वैसा था कि आधा घंटा मैंने अपने आप को अलॉट किया हुआ है इन द स्टार्ट। PYQPs भी किए होंगे previous year के question वो papers अवेलेबल के होते हैं sets. क्या कैट? या नहीं, जब से ऑनलाइन हुआ है तब से कहाँ अवेलेबल? तब से ही तो है. From 2016 onwards, you have all the papers there. 16 नहीं है, but 17, 18, 19, 20, everything. अगर अवेलेबल होता है तो किए होंगे, मुझे याद नहीं है, साल भर हो गया। It's available. हाँ, So तो मैंने किया होगा, बट हाँ मतलब मेरा ये था कि आई स्टार्टेड आउट विद 30 minutes allotted for each puzzle, and it came down to like 15, 14, 13, and at that point of time any new question which I encountered, I really felt कि यार it's like that one. It's a variation of something Yeah. you've already done. Yeah. So there are a limited number of tricks, there are a limited number of techniques used to trick a candidate, and once you have figured them out, उसके बाद कुछ नहीं बचता DILR के पेपर में। और क्वांट में डेफिनेटली माई 1 month at VMC was really helpful, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि यार सब कुछ रिवाइज कर, ठीक है, और तो मैंने पूरा अपना JEE एडवांस का सिलेबस रिवाइज किया इन द फर्स्ट वीक और सो, एंड देन दे फर्स्ट पुट एनी न्यू फैकल्टी इन द डाउट क्लियरेंस सेशन, ठीक है, मतलब डाउट क्लियरेंस के जितने सेशंस होते थे उसमें मुझे काफ़ी यूज़ करते थे। तो अब बच्चे आते हैं और उन पर कोई वो लिमिट तो है नहीं, No restriction. हाँ, कि अभी ये टॉपिक पूछना है या ये टॉपिक अभी सर का उतना क्लियर नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक अभी 2 घंटे पहले पढ़ा है, वो तो कुछ भी पूछेंगे। डाउट सेशन में कई बार ये होता है ना कि हाँ। तुम टीचर हो कि वो आके तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं। एग्जैक्टली, न्यू फैकल्टी को तो हमेशा स्टूडेंट्स Correct. लेके आएंगे वो कोई अपना फालतू की किताब का सवाल, तो वो दैट वाज काइंड ऑफ काफ़ी ऑन द जॉब ग्रिलिंग, और वो 1 month काफ़ी यूज़फुल रहा इन द सेंस कि पूरा मैथ सॉर्ट ऑफ रिवाइज हो गई, और रिवाइज ये भी नहीं कि नॉट जस्ट फ्रॉम माई साइड, मतलब आई वॉज पुट थ्रू अ फायर ट्रायल, Correct. बच्चे आके पूछ रहे दिन भर में 4-5 घंटे डाउट सॉल्विंग कर रहा हूँ, तो दैट वाज रियली गुड। क्वांट्स में आई थिंक मुझसे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, Nice. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी जो 17-18 की प्रेपरेशन थी उसकी कुछ नोट्स थे मेरे पास, इन द सेंस कि मेरे पास कुछ फॉर्मूला शीट्स थी जो मैंने बनाए थे, एंड BRC में कुछ ट्रिक्स थी कि कैसे टू एलिमिनेट ऑप्शंस, वो सब मेरे पास फॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता, यूजुअली आई एम रियली केयरलेस अबाउट ऑल दिस स्टफ, बट ये संभाल के रखा था। बट पता नहीं कैसे वो मिल गया मुझे अपनी पुरानी कवर्ड में, तो हाँ दैट हेल्प डेफिनेटली। Nice. Another major issue that students generally face during this preparation time and during the CAT exam is this thing of, getting very tired and mentally drained by the time you reach the third section, which is quant. And you will realize, we've seen this year after year, generally wo cut off or the mark corresponding to a 90 percentile or a 99 is generally the lowest for quant. Not because it's very difficult, but just because it's the last section sometimes. That's what I feel. Yeah. I'm not saying that that's necessarily the case, because Definitely, tricky bhi hota hai. Hmm. So, how did you combat that? देखो मेरा ऐसा था कि आई हैव बिन गिविंग 3-hour UPSC सब्जेक्टिव रिटन पेपर्स फॉर 5 years, एंड एक दिन में 2 होते हैं, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ राइटिंग फॉर 6 hours एट अ स्ट्रेच, तो मतलब इट वॉज नॉट मच ऑफ एन इशू फॉर मी, मतलब आई नेवर फेल्ट कि आई एम फीलिंग टायर्ड इन द लास्ट 15-20 minutes, बट फॉर दोज हु आर नॉट इन द हैबिट ऑफ सिटिंग डाउन फॉर सच स्ट्रेचेस, आई वुड सजेस्ट कि why don't you practice giving 2 mocks at a time? But if you put yourself through that a couple of times, doing Back to 4 back. hours of CAT exams, and if you do that, I think 7, 8, 10 times, I think that would be enough. Haven't done Sure. that, मतलब मैं बस Sure. अंदाजे से हाँ, so basically what you're turning around and saying, जैसे हम लोग क्रिकेट या स्पोर्ट में बोलते हैं, मतलब physical हाँ। fitness is important. Here the mental fitness. फिजिकल भी यार, Is पीठ में that- दर्द हो जाता है, मेरी तो उम्र हो गई है। Absolutely. So एक तो ये हो गया कि लिखो, second analyzing mocks. हाँ definitely. So what inputs, any specific inputs you would give students कि यार analyze करो, ये भी करो. एक बहुत important चीज़ होती है जो students आके करते हैं, सर हम analyze करने बैठेंगे ना तो we will only look at the question I got wrong, I will only look at the question I didn't attempt, वो right question को मैं देखूंगा ही नहीं.
So any inputs with respect to that you know what is it that you should do? देखो उसमें मतलब ये मेरे से भी मिस हो जाता था कभी कभी कि इफ़ यू गॉट द क्वेश्चन राइट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि इट वाज नॉट अ करेक्ट आंसर, इट वाज माय बेस्ट गेस. ठीक है, तो आई एक्चुअली यूज्ड टू मार्क दैट कि देयर इज ऑलवेज अ फ्लैगिंग ऑप्शन इन एवरी मॉक एंड Correct. तो मुझे पता होता था कि जैसे आई एम गुड एट एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, तो इफ़ आई एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस एंड आई गिव माय बेस्ट शॉट एट दोज 2 रिमेनिंग ऑप्शंस, 50% of the time it will get right, it will be right. ठीक है, but that doesn't mean कि I don't have to come back and analyze that question. So I used to flag those questions, especially it happened in VRC a lot. तो हाँ definitely वो बहुत important है. लेकिन there is also that thing कि यार especially ये VRC के बारे में कह रहा हूँ, there is some randomness. मतलब there are not, I don't think there exist perfect rules in English. ठीक है, and especially somebody who's not from a non-engineering background, they will definitely feel a little short-handed in BRC. And हम लोग intuitively solve करते हैं. We don't remember Absolutely. theorems, we don't remember क्या rule था, क्या ये था. हम बस ये इस तरह से solve करते हैं कि यार ये सुनने में सही लग रहा है. ठीक है, तो what happens is कि obviously when you use the ये सुनने में सही लग रहा है technique, 10 में से 8 question you will either get right, और अगर if you got wrong, you will understand कि why you got wrong when you analyze. Correct. But there will always be that 2 questions जिसमें यार नहीं समझ में आएगा, तो just leave that. उतना बीटी नहीं लेनी है उन 2 questions की. मतलब try to score in DILR and quant. मैं engineers perspective से बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ 1-2 ज़रा बहुत कुछ हुए, और Correct. वो भी यार हो जाता है. मतलब इंग्लिश में मेरा अच्छा आ गया था. Correct. तो with practice जो आपका वो है ना कि ये सुनने में सही लग रहा है, that also improves. And that's not wrong, because even if you look at the instructions of the CAT paper, they never say mark the correct answer. That's not the instruction. The instruction is the best possible answer. अच्छा, ये तो पढ़ा ही नहीं. So which of this is the best possible? Exactly. So and that is exactly what you're saying. ये हाँ. best possible लगा हाँ. तो best possible ही तो ढूंढ रहे हैं. हमेशा correct हो भी नहीं सकता. It's sometimes left to interpretation, हाँ. especially in something like हाँ. verbal. In quant that will never happen. But in verbal I it think will हमारे happen. ही पेपर में शायद हुआ था ना, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे which they accepted कि यार इसके दोनों आंसर. Later on, yeah, हाँ. that multiple हाँ. options That could be happens. true. Correct, हाँ. it does happen, absolutely. Lovely, great. So yeah, I think important inputs from Anuj with respect to analyzing mocks, with respect to ensuring that you've developed you know physical fitness and mental fitness to go ahead and take them. Now let's move to the other part. ठीक है, वो हुआ, आ गया call, but 5 year का drop है, tension है, convert होगा कि नहीं, like you were saying. What is the next bad news around the corner? And so at that time, if I'm not wrong, next bad news ये थी कि शिलोंग का कॉल नहीं आया था. आज तक समझ नहीं आया मुझे क्या चाहिए था. yeah, I get that. मतलब अगर आप एग्जाम करा रहे हो, Been there, done that. Trust me. हाँ, आप एग्जाम करा रहे हो, उसका जो टॉपर है आप उसको बुला नहीं रहे हो इंटरव्यू के लिए. Why are you part of the exam? मतलब छोड़ दो ना, अपना अलग कराओ. Interesting. So yeah, so ठीक है. The next thing you're worried about is obviously like everybody starts thinking is interviews. The most important part, because ठीक है, exam तो crack कर लिया, but interview is going to decide whether you get into the college or not. So if I'm not wrong, you joined us for PDP Personalized, right? So who was your mentor? What was your experience? What are some of the inputs that were shared with you? उस समय काफ़ी freaked out था because everybody around me was of the opinion कि it's going to be really difficult. 5 years, explaining a 5 years gap, that to a really poor academic profile, BTech, ठीक है, BTech and 6 pointer in BTech. तो मतलब I thought कि यार फिर मैंने PDP Personalized ज्वाइन किया. I actually met GP sir, और वो काफ़ी ज़्यादा मुझे वैसा लगा कि you know I don't know, मतलब it's difficult to put into words. एक sort of एक vibe match हो जाती है कि यार this guy understands me, because everybody around me was sort of, मुझे काफ़ी judgment मिलता था हमेशा. ठीक है, और चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव. हाँ ठीक है, बट sort of मुझे वैसा फील हुआ कि यार this guy understands कि मतलब you know exactly what used to happen, BTech में क्या scenario रहा and अभी भी क्या हो रहा है. तो आई फेल्ट एट होम जब मैं मतलब उनसे मैं CP वाले CP सेंटर में मिला था. हाँ, तो और तो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड. मैं शिवकू सर से मैं मिला था. अच्छा. तो शिवकू सर से मैं एक्चुअली पहले भी मिल चुका था 2018 में. तो आई फेल्ट वेरी मच एट होम, और एंड इट टर्न आउट टू बी अ गुड डिसीजन. मैंने बताया ना आपको कि मैंने उनको उस 2 महीने में जो इंटरव्यू प्रेप थी, एक तो PDP Personalized में ये है कि you get the number and you can disturb them as many number of times. Disturb. I like that term. ठीक है. Yeah. तो I actually must have called him more than 70-80 times in that 60 days. ठीक है.
और एंड में मुझे लग रहा था कि ये बंदा मेरा फ़ोन उठाना बंद कर देगा, ठीक है, हुआ नहीं बट ही डिडंट डू दैट, या। तो मतलब एक एक टिक पूछता था, मैं इतना ज़्यादा फ्रीक्ड आउट था, और इतने ज़्यादा वो वाली से आ जाती ना कि मतलब व्हेन यू आर बैंकिंग ऑन जस्ट वन थिंग, ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं। यू नीड परफेक्शन। हाँ, परफेक्शन नहीं हुआ तो डर लगेगा हाँ, कुछ हो जाएगा। ठीक है। प्लस इतनी सारी चीज़ें थी यार इन द मार्केट की, somebody told me कि अहमदाबाद never takes 100% IELTS. The last time they took 100% IELTS was in 2020, अच्छा। and next was 2023 batch. This time also 2024 batch they have rejected the, I think, yeah, he's going to Calcutta. तो ये सब था, इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी कि मतलब हाँ, आपने जो कहा ना एग्जैक्टली कि डैम नियर परफेक्शन चाहिए था। तो एक एक टिक यार, टिक बॉक्स करना है कि नहीं करना है, वो तक मैं पूछता था, विच नाउ विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आई फील कि कितना सिली था, बट ठीक है, उस समय का माइंडसेट था। करेक्ट। और मैंने एक एक आंसर इतनी बार रिव्यू कराया जीपी सर से, मतलब वो SOP एंड अहमदाबाद में 3-4 आंसर्स लिखने होते हैं। और मेरा- FBM भी किया था कि बस नॉर्मल FBM नहीं पीजीपी किया था। पीजीपी? हाँ। और मतलब सभी ने कुछ कुछ लिखवाया था, कलकत्ता में भी हाँ, 3-4 हाँ, आंसर्स लिखने थे, absolutely. एंड आई वाज लाइक कि कितना कंटेंट डालना है, कितना वो फ्लावरी लैंग्वेज होनी चाहिए। Especially B का SOP, B का SOP तो भाई- they give you word हाँ, limit, but exactly. the expectation is बहुत कुछ। और बी का SOP यार, हमने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मतलब जीपी सर एंड मी एंड शिवकू सर भी। अभी तक मुझे हल्का सा बीटी है उस बात की कि यार उन्होंने मुझे लिया नहीं, ठीक है। मेरा SOP वाज रियली गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। मैंने वो फ्यूचर में काम आ जाएगा। नहीं, But great. So yeah, so that means overall the experience was हाँ, good, quite helped positive, you. yeah. Lovely. ठीक है, so then Ahmedabad happens. So what was Yeah. your reaction to when that Ahmedabad, the screen pop-up says congratulations, success, I think it was Welcome. 16th या 15th April. 2023. I should have remembered the date. मतलब one of the most important dates of my life. हाँ, दिन का टाइम था, आई थिंक 2:30-3 बजे थे, कूलर में पड़ा हुआ था, और मैं ग्रुप ऐसे लेट के मैं ऐसे ग्रुप स्क्रॉल कर रहा था, क्योंकि 8 तारीख से अफवाहें चल रही थी कि आज Yeah, आने yeah. वाला है। और एक हमेशा कोई एक बंदा होता है ग्रुप पे जो प्रैंक्स करता रहता है। Correct. ठीक वो है? आ गया देखो। ठीक है, मतलब बहुत गुस्सा आती है उस पर, लेकिन ठीक है, वो माहौल बना रहता है। तो वो 8 हमारे यहाँ में एक आदित्य था, देखेगा तो अभी वो मेरा बैचमेट है मेरा, ठीक है। अच्छा। तो उसका स्पोर्टी आदित्य उसका वो था, व्हाट्सएप पे उसका, ठीक है। उस समय हम लोग उतना व्हाट्सएप पे ही जानते थे, टेलीग्राम सॉरी, तो लोग अपना रियल नाम भी यूज़ नहीं करते थे। Correct. तो मेरी कोई बात नहीं हुई थी, ही वॉज जस्ट ऑन दैट अहमदाबाद कॉल गेटर्स ग्रुप या इंटरव्यू ग्रुप। तो मुझे याद है स्पोर्टी आदित्य लिखा रहता था। तो 8 तारीख से कर रहा था, ठीक है, और बहुत गरिया चुके थे उसको कि भाई मत कर, मतलब इस बार आया तो माने ही नहीं। हाँ, और ये भी मतलब परेशान हो गए थे Full story. 8 तारीख से एक्सपेक्ट करते करते अब एक हफ्ता निकल चुका था। तो और फिर मतलब एक थोड़ा ट्रस्टवर्दी बंदे ने डाला कि आ गया, रियली आ गया। तो हाँ, डेफिनेटली उस समय, लेकिन somehow बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं था। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन अंदर अंदर कहीं ना कहीं थी कि हो जाएगा, बट हाँ डेफिनेटली मतलब वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। तो काफ़ी अमेजिंग फीलिंग होती है। मुझे वो सेटिंग याद है, कहाँ बैठा था मैं, मम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मैं ड्राइंग रूम में, तो मैं उधर गया था कि मैंने ऐसे करके बताया था, तो हाँ, फिर वो फ़ोन रख के आई थी। तो हाँ डेफिनेटली काफ़ी अमेजिंग मोमेंट होता है। Lovely. One that you'll never forget. That moment for sure. Definitely. तो इससे फिर से I'll take one step back because we didn't talk about it. But Ahmedabad interview, what exactly did you focus on? Because like you said, everybody has been telling you यार 5 साल का ड्रॉप है, क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे. And यहाँ पे we get students every year जो बोलते हैं, sir, can I drop 1 year? And that 1 year is actually 6 months. मतलब you've just written CAT, say 2023 लिखा, didn't get into your dream school. You have CAT again now in 6 months and you're thinking of dropping, and they start thinking, can I drop? क्या हो जाएगा जिंदगी? And here is somebody 5 years, a 5-year so-called drop. But so what was there in the interview? What is the expectation? What do you need to go ahead and do? I don't think they mind the gap years. All they expect from you is कि जो भी टाइम आप कुछ नहीं कर रहे थे, you have to explain कि आप क्या कर रहे थे. तो जैसे they grilled me exhaustively, I think. उन्होंने मुझे कहा था कि put down all the topics that you have studied during your UPSC years. So I thought कि it's a normal ऊपर का सवाल. So I wrote down 4-5 the names of the papers, the broad names, broad categories. And then they were like कि अरे हमें काफ़ी डिटेल में पता है यूपीएससी के बारे में, list down all the topics in detail. Sure. तो मैंने उस लिस्ट को बढ़ाया, मतलब to 16-17 topics. And then they took that list and they started crossing it off one by one, asking questions on every single one of them.
वाओ. तो इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्लेन, और जैसे कि आई थिंक कि मैंने काफ़ी, और यही मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन आई थिंक मोस्टली काम भी आई थी बहुत ज़्यादा. यही मैंने रिवीजन भी किया था इंटरव्यू से जस्ट पहले, कि मेरे जितने भी, चाहे वो मेरे गवर्नेंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, जितने भी टॉपिक्स के नोट्स थे मैंने सब एक बार गो थ्रू कर लिए थे, उतना डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से. और उन्होंने वही किया कि जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात आई तो दे प्रॉपरली आस्क्ड मी यार कि नक्सलिज्म पे बताओ, व्हाट आर योर व्यूज़ एंड हम क्या गलती कर रहे हैं, हाउ टू फिनिश So नक्सलिज्म. went quite deep. मतलब And opinionated. हाँ, इंडिया जापान रिलेशंस का पूछा था कि हाउ आर वी टर्निंग द टाइड. इंडिया इसराइल पूछा था. उन्होंने मुझे पूछा था एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कि व्हाट आर द डेफिशिएंसीज इन अ डिफेक्शन लॉ. और इकोनॉमिक्स में उसमें गए थे कि वो कोई वो था ना अपने SDG गोल्स एंड ऑल दैट स्टफ, कि किस में हम लैग कर रहे हैं. ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में पूछा था, जो कि थोड़ा सा पेरिफेरल टॉपिक था. ईज़ ऑफ लिविंग उतना ज़्यादा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कॉमन है. Correct. ईज़ ऑफ लिविंग इज समथिंग यू वुड नो ओनली जब आप बहुत ज़्यादा यूपीएससी कर चुके हो. Gone deep into it. तो हाँ, तो वो सब काफ़ी गए थे. मतलब So hearing this, I almost feel कि if 2017 कैट में हो जाता, 2018 में इंटरव्यू ले रहे होते, तो उस टाइम तो शायद अंडरग्रेड के टॉपिक पे आता. हाँ, मैं नहीं निकाल पाता उस समय. Right, and here at least 4 years डाला, and serious because you actually enjoyed what you were doing here. Didn't crack it, that's a separate story. But 4-5 years you gave it your all, so it probably just worked out for you. Things probably like you. I think outside we were talking. The puzzles the pieces just fell into place. It was as simple as that. मतलब that's what I tell myself. No, but also hearing what you're saying कि यार अंडरग्रेड पढ़ा ही नहीं, फोकस ही नहीं था. अरे उस समय तो Don't know मुझसे much अगर about पूछ लेते it. वो कि डायोड क्या होता है, तो मैं नहीं बता पाता. Correct. इनफैक्ट अभी अहमदाबाद के इंटरव्यू से पहले आई थिंक ये हुआ कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स रिवाइज कर लो. आपने एक शायद बुकलेट दी थी, क्या है ना, आपको? PDP बुकलेट. हाँ. करेक्ट. यार मुझे उसका वर्ड समझ ही नहीं आ रहे थे उसमें क्या है. और अच्छा, मुझे the पूछने में ये questions. शर्म आ रही थी कि अगर मैं ये पूछूं, और फिर मैं जीपी सर को बोला कि यार मुझे ये सब नहीं समझ में आ रहा. मैंने कहा अरे बस ज़्यादा डीप में नहीं, ऊपर ऊपर से ही दिया है. तो मैंने कहा नहीं समझ में आ रहा, फिर भी मैंने ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ा है यार. ठीक है. तो अब वहाँ बैठ के मुझे कोई फ्लिप फ्लॉप तो समझाता नहीं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, स्विच क्या होता है. तो फिर जीपी सर ने कहा था यार एक काम कर, 5 साल हो गए, आई डोंट थिंक कोई पूछेगा. और एक मतलब एक रियल रीज़न सोच लो कि तुम क्या बोलोगे अगर पूछ लिया. तो मैंने कहा भाई मैं सच बोल दूंगा, मतलब मेरा ध्यान नहीं था. ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था बीटेक में, मतलब वही जो मैंने आपको इनिशियली बताया ना. करेक्ट. तो फॉर्चुनेटली किसी ने मुझसे कभी ग्रेजुएशन की बात की ही नहीं, मतलब नॉट इन एनी इंटरव्यू. I think very important point, right? हाँ. If there are others out there who are dropping for whatever हाँ. reason, जो किया उन 2-3 साल 5 साल उसमें, focus on that, be able to हाँ, handle exactly. yourself with respect to those things, and that's it. That's what they want. It's not that your life has ended. They are willing to give you another opportunity if you actually showcase that I did something. Didn't work out, that's a separate story. इनफैक्ट हमारे बैच में आउट ऑफ 450 या 440 जितने भी हैं, आई थिंक 20-30 लोग ऐसे हैं विद यूपीएससी एक्सपीरियंस, यूपीएससी गैप ईयर्स. Wow. एंड अहमदाबाद हैज़ रियली बिन वेरी रिसेप्टिव ऑफ पीपल लाइक अस. और इनफैक्ट मतलब आई वुड से कि कॉर्पोरेट्स टू रिस्पेक्ट दैट. I would go one step ahead. I would say not only Ahmedabad. I think the top 3, 4, 5 B schools. I remember I have a mentee in 2018-19. Very similar story as yours. Dropped out of an IIT, prepared for UPSC, didn't crack UPSC, went to Cal eventually, working at Goldman Sachs in New York now. So very similar story. So I think this is a good part, and that's something that everybody should realize, that these top B schools, it sounds like they are only wanting profiles. That's a misnomer. जितना ज़्यादा आप आजकल डाइवर्सिटी का सुन रहे हो, मतलब दे रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज ऑल्सो ना. All kinds. कि अगर आप इतना ज़्यादा 50 चीज़ों के बारे में जानते हो, तो दैट्स अ गुड थिंग. स्पेशली आई थिंक कंसल्ट फर्म्स ने बहुत ज़्यादा प्रीफर किया था. मेरे बैच में एक बंदा है, ही इंटर्नड इन मैकेंसी. उसका भी ऐसे 3-4 साल का गैप है, and nobody thought कि उसकी शॉर्ट लिस्ट आएगी. बट सिंस ही नोज सो मच, आई शॉर्ट लिस्ट एंड ही कन्वर्टेड, ही इज डूइंग क्वाइट वेल. तो Not just him, you what, JP Morgan? हाँ, Yeah, so हाँ. JP Morgan, we know they Nobody generally- was expecting the shortlist, yeah. You don't get shortlist because the first round of shortlist is just profile, right? 10, 12 undergrads, Yeah. basic things that they look at. But still, you did. I think it was mostly because अच्छा एक ये भी चीज़ थी कि जीपी सर ने कहा था कि आई थिंक दिस वाज इन नवंबर या दिसंबर कि यू विल गेट इनटू वन ऑफ द ग्रेट कॉलेजेस, दैट्स नॉट एन इशू. तो उतना ज़्यादा ध्यान इंटरव्यूज़ पे देने के बजाय यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अहेड.
तो he told me कि fill out the forms for CFA and FRM. The May to 2023 attempt. ठीक है? तो I gave both my level ones. In fact मैं FRM का एग्ज़ाम दे के लौट रहा था तब आपका वो चाय पे चर्चा इवेंट था. हाँ. तो मैं वहीं से चंडीगढ़ से आया था Oh, डायरेक्टली. interesting. हाँ. तो मैं अपना नॉर्मल जो पढ़ने वाला मोड होता है, बाल बड़े हुए, कुर्ता पहना हुआ, ठीक है, मैं वैसे पहुंचा था. तो सर ने कहा थोड़ा ठीक ठाक हो जाए स्टेज पे जाने से पहले. तो हाँ, तो वो था कि आई थिंक CFA And cracked both of them. हाँ. So तो you cleared both of them. और आई थिंक जैसे मेरा मार्केट्स था ट्रेडिंग, तो इट्स मोस्टली अ क्वांटिटेटिव गेम, Yeah. है ना. तो आई थिंक मेरा मैथ्स बैकग्राउंड, मतलब बीट माई वर्क एक्सपीरियंस या फिर मेरा परसेंटाइल, उनको लगा होगा कि शायद मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटेटिवली इंक्लाइंड है ये बंदा. तो दैट्स वाई प्रॉब्ली दे गेव मी अ शॉट. दैट Perfect. वर्कड आउट वेल. Lovely. And then obviously went ahead, cracked the interview. या 7 राउंड्स यार, मतलब दे एक्चुअली एग्जॉस्टेड मी सीरियसली. Lovely. So, let's get to the last part, last 1 year. That's the, I think, USP of this interaction with you, जो generally लोगों से सुनने को ज़्यादा वो सब मिलता बता तो नहीं नहीं सकता हूँ ज़्यादा, कैमरे पे तो भी. No, but slightly more generalistic understanding of what campus life is all about. Like, I always turn around. मैं अगर अपना खुद का experience में बोलता हूँ, it is something you have to experience. You know, if you've not experienced, you've actually missed out on something. That, in short, that's predominantly what I go ahead and say. Multiple aspects to it. I always say, for me, it was a lot to do with dramatics and cricket and stuff like that, because I was heavily into it. For you, it could have been something. But what has the last 12 months been like for you? What are, if you would turn around and say these 2-3 things which you will say, wow, मतलब ये नहीं आया होता है यहाँ, तो ये नहीं मिला होता. ये दो तीन चीज़ें के लिए तो भाई बनता है, फाइट मारना बनता है. तो देखो, आप जिन 2-3 चीज़ों की बात कर रहे हो, आई डोंट थिंक आई कैन से. ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप कह रहे हो, मतलब ड्रामेटिक्स एंड ऐसे कोई क्लब्स Sure. वगैरह. मोस्टली आई स्पेंट माई टाइम In front of that brick building, red brick building. काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ एक्चुअली, यू नो. मतलब रात में गो आउट फॉर ए वॉक रात में 2-3 बजे. अरे यार, दैट्स रियली पीसफुल. मतलब LKP के सामने खड़े हो, थोड़ा सा वैसा भी होता है, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग होता है कि मतलब क्या कर रहा हूँ, कहाँ क्या करना है. आई डोंट नो, मेरा थोड़ा एक UPSC के टाइम से चल रहा है कि मैं रात को छत में टहलता था. Nice. ठीक है, जस्ट थोड़ा सा आई डोंट नो, Be एक with सॉर्ट your ऑफ own self. पीस मिलती है मुझे. हाँ, तो दैट्स अ ट्रेडिशन आई हैव कंटिन्यूड. बाकी आई मोस्टली स्पेंड माई टाइम टॉकिंग टू पीपल. मतलब वहाँ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग क्राउड होता है. So yeah, I think that's one thing, the diversity, right there. हाँ. So a lot of people there from different backgrounds. We were just talking about it. I have a couple of mentees, law हाँ. background were there, हाँ. you know. So yeah. So how has that been? ये जो misnomer है कि diversity just for the sake of diversity है. मैं GEM हूँ तो मेरा कुछ नहीं होगा. वो that is a general non-engineering female. So उनको सब हो जाता है, हमें नहीं होता. How have the conversations been? Is there some good takeaway that you've had that you feel it is actually good, it helps? And how do you think the corporates have started looking at this as well? Like you said, the corporates giving opportunities even after 4-year drop, 5-year drop, they don't make a difference. So what's your take on that? यार देखो, ऐसा नहीं है कि इट्स सिंपली फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिटी. डेफिनेटली ऐसा लगता है, यू नो, सिटिंग एज अ जेम कैंडिडेट. बट जैसे मैं भी शुरुआत में उसी पर्सपेक्टिव से गया था, ठीक है, कि यार ये सब क्या है. ठीक है, टर्न्ड आउट कि आज की डेट में मेरा व्यू ड्रास्टिकली अपोजिट है. और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब देखिए, कोई भी ओपिनियन बहुत जनरलाइज नहीं है. ऐसा नहीं है कि all the diversity DEI candidates are better than GEM candidates. ऐसा नहीं Absolutely है. not. लेकिन definitely there are some जो कि you know they can actually amaze you. अब जैसे I don't know यार, मैं ऐसे personal examples भी नहीं ले सकता. Sure. So more than amazed, what I'm looking at, they bring up different flavor, हाँ, different sort of conversation, different हाँ, bent of mind. Suddenly, oh, ये ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी हुआ है. हाँ, ये चीज़ वहाँ भी अप्लाई होती, कभी सोचा ही नहीं. हाँ. जैसे एक दोस्त है, उसने हमेशा फैशन में ही सब कुछ किया. ठीक है, तो वो निफ्ट से है. तो टर्न्ड आउट कि अगर आप
एक फील्ड में इतना पैशनेटली इतना टाइम से काम कर रहे हो ना, तो यू वुड गेट सम इंसाइट्स जो कि Absolutely. मतलब ऑब्वियसली बाहर से आपको नहीं मिल सकती. तो जब मैं उसके व्यूज़ सुनता हूँ अबाउट मार्केटिंग, तो यार मैंने कभी सोची नहीं होती उस तरह की चीज़ें. Yeah. ठीक है. तो ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट मार्केटिंग. काफ़ी Interesting. या So I think that's what you were saying, हाँ. talking. You've spoken a lot. हाँ So that is something that, हाँ is provided you with different understanding, हाँ, what others exactly. have experienced, how they think. हाँ. And I'm sure कि मैं होप कि मतलब उन लोग को हमसे फ़ायदा होता हो, मतलब हम लोग जैसे Yeah. पॉइंट्स की बात करते होंगे. Correct. हाँ, पॉइंट्स ऑफ Yeah, फाइनेंस. you'll bring a technical way of looking हाँ. at things. They'll bring a slightly more qualitative way of हाँ, bringing at things. definitely. Sometimes they might bring a technical thing that we might Yeah. that might not strike you. Mm. Interesting, quite interesting. I think that's predominantly what the MBA game is all about. So to wrap it up, if I were to say last two questions, okay, काफी लंबी चौड़ी बात हुई है and all. Hopefully, students out there would have been quite interested to understand क्या था. Number one, everybody in their preparation faces some sort of disappointment. For somebody it could be as simple as मेरे 2 मॉक खराब गए. For somebody it could be like यार 2 अटेम्प्ट खराब गए, ड्रॉप करना पड़ रहा है, क्या करूँ. So considering, I think you are one of the most qualified people to answer this, because in your own words, इतने failures जब देख लिए हाँ. तो फिर थोड़ा डर भी लगने लगता है सक्सेस से कि भैया नेक्स्ट फेलियर हाँ. कौन सा है which is around the corner. हाँ. But still, you stayed motivated, you worked towards it, you ensured that you built a very good career now, you're on the right path, you've interned at a great place, your second year is about to start, you're in one of the most premier institutes of the country when it comes to Bas. business education. So hopefully this is all just the beginning, lot more. So what is it that you would go ahead and suggest to those kids, those students out there? तो कि ऐसा क्या लगता सोचें? है, ऐसा लग रहा होगा शायद कि आई स्टेड मोटिवेटेड. ठीक है. रियलिटी इज़ कि देयर वर डेज, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द डेज मैं उठ जाता था, मुझे बेड से उठने का मन नहीं करता क्योंकि देयर वाज नथिंग, इट फेल्ट कि देयर इज़ नथिंग टू लिव फॉर. ठीक है, कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है. और ऐसा नहीं है कि मैं उन दिनों में काफ़ी प्रोडक्टिव था. मतलब लोग कहते हैं कि अपना काम करते रहो, दैट गीता वाली थिंग कि फल की चिंता ना हाँ, करो. प्रैक्टिकली यार नहीं हो पाता. आपको नहीं मिल रहा होता है ना फल इतने साल से, तो आप लग जाते हैं आपके. ठीक है कि यार किस लिए काम करूँ. तो उन दिनों मतलब द लास्ट मंथ्स, द लास्ट वीक्स ऐसे थे कि मैं बेयरली उठता था और 4-5-6 घंटे काम कर लिया तो बहुत हो गया. ठीक है. और कई बार बहुत कम प्रोडक्टिविटी से काम करता था कि एक बुक लेके बैठे हुए हैं और मतलब पन्ने पलट रहे हैं, दिमाग नहीं चल रहा. तो ऑल दैट हैपन्स. बस ये है कि एकदम क्विट करके मत बैठ जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार वही है ना कि एरो लॉन्च करने से पहले वो पीछे जा रहा होता है. करेक्ट. तो लेकिन अगर आप जब पीछे जा रहे हो तो आपने ये सोचा कि यार मेरा कुछ हो नहीं रहा, और फिर आप एकदम गिव अप कर दो कि आपने पूरा ही छोड़ ही दिया, मतलब एरो रिलीज़ ही नहीं किया. Surely not. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा ना कि मैंने कैट एंड इंटरव्यू प्रेप में कोई खास एफर्ट नहीं डाला, लेकिन ऐसा नहीं कि तुक्के से हो गया. पिछला जितना बिल्डअप हो 5 रहा years था, leading to it. जितना बिल्डअप इतने साल से हो रहा था, तो दैट वाज इट. अब अगर मैं कैट का फॉर्म ही नहीं भरता कि यार नहीं हो रहा मेरे से, वो वाली चीज़ है. तो एंड दैट इज़ ट्रू. यहाँ इतने डेस्परेट नहीं होते कि हर फॉर्म का एक एक टेक, एक एक बॉक्स, एक एक चीज़ करेक्ट है. अगर हाँ. वो पागलपन नहीं होता, वो वांट हाँ. ऑफ परफेक्शन नहीं होता, इवन देन प्रॉब्ली हाँ, थिंग वुड हाँ. हैव वर्कड आउट. मुझे लगता है मैंने फॉर्म भरने में ज़्यादा दिमाग लगाया होगा. मैंने इंटरव्यू की प्रेप में उतना प्रिपरेशन नहीं करी. मैंने अपने बस थोड़े बहुत Worked out for you because the UPSC 5 हाँ, years that you exactly. put in, and you knew Exactly. कि conversation will be somewhere around हाँ. that, but that might not be the case for everybody. हाँ एग्जैक्टली. इस बार मैंने दो चार लोगों ने मुझे अप्रोच किया था फॉर इस तरह Some की गाइडेंस. हाँ. तो यार उन लोगों ने काफ़ी प्रिपरेशन करी थी, और वो करनी भी थी. मतलब Correct. ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकते आप. मेरे पास तो ये था, बहाना था कि मैं बहुत सारी चीज़ें उस पर डाल दे रहा था. सर वो बहुत पहले पढ़ा था, कुछ ऐसा बोलेंगे तो सर 5 साल हो गए उस बात. Correct. ठीक है. बट मतलब फ्रॉम द Everybody रेस्ट ऑफ द does क्राउड, that. हाँ, Correct. आप ऐसे नहीं बोल सकते. तो आई वुड से कि डिमोटिवेशन आता है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेटिंग होता है, और उतना प्रैक्टिकल नहीं होती हैं शायद बड़े लोगों की जो एडवाइस होती है कि जस्ट कैरी ऑन एंड ये वाली चीज़. बहुत क्लीशेड लगता है, इनफैक्ट बहुत इरिटेटिंग लगता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यार बहुत बार सुन चुके हैं, प्लीज़ शांत हो जाओ. लेकिन मतलब अगर उसका, और वो पूरा इम्प्लीमेंट करना भी नहीं होता है, पूरा कोई कर ही नहीं सकता इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. Correct. अगर आप 15-20% भी उसका कर ले गए ना,
तो आई थिंक दैट सफिशिएंट. मैंने भी आई थिंक उतना ही किया था इन द लास्ट 5-6 months. Correct. Yeah. Perfect. And one last thing, what is it that you would want our listeners, our students, those preparing to, what are the one or two things for them to focus on and keep in mind during their preparation, which you think is going to help them either crack the exam or later on in life, but it's surely going to help them and keep them in good stead? One or two things that you would want to recommend to them. Always have a backup. Definitely. थोड़ा सा be far sighted. जैसे कि मतलब if you are doing something, जैसे बहुत सारे candidates हैं who think कि बस हाँ MBA selection हो गया, that's it. But मतलब you know it was the people around me who had told me कि start thinking ahead. तो मतलब वो मैं कहूँगा कि बाकी सब लोगों को भी अगर MBA में हो गया सिलेक्शन तो या MBA छोड़ो, मतलब इन जनरल लाइफ में थिंक थोड़ा सा डाउन द लाइन कि एनीथिंग दैट आई कैन डू राइट नाउ दैट विल हेल्प मी 1 year लेटर या 2 year लेटर, कुछ ना कुछ बिल्ड करके मैं छोड़ सकता हूँ. मतलब क्रिएट एसेट्स फॉर योर सेल्फ, नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब स्किल एसेट्स या तो दैट हेल्प्स डेफिनेटली. और क्या एडवाइस दूँ? बाकी एडवाइस तो ऐसी है, मतलब Chill. कैमरे पे नहीं दे रहा है. No, chill in life. Irrespective of the situation, Chill always बहुत करना है. mentally. अच्छा हाँ, ये भी है कि MBA कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा ये बनाया जाता है कि बहुत क्रेजी है. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितना लोड लेना चाहते हो. मैंने बहुत कम लिया. ठीक है, मैं विश थोड़ा शायद ज़्यादा लेना चाहिए था. मतलब मैंने थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे मैं ले गया क्योंकि मैं वही था. मैं जब एक तो मेरी किस्मत यही है कि मैं जब भी कॉलेज जाता हूँ ना, मैं इतना एग्जॉस्ट होकर जाता हूँ, फिर मैं कुछ मन ही नहीं करता करने का. तो वहाँ मैं तो वही है कि मतलब फोकस योर एफर्ट्स, जो चीज़ें आपके एक्चुअली बाद में काम आने वाली हैं. बहुत ज़्यादा इधर उधर से नॉइज आएगा Correct. कि यार ये भी करना है वो भी करना है, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली रेलेवेंट. Absolutely. तो काफ़ी स्ट्रीमलाइन रहो एंड हो जाता है. फिर उसके साथ को बकचोदी का भी काफ़ी टाइम मिल जाता है. अगर आप 50 चीज़ों पे दिमाग नहीं लगा रहे हो तो इट वर्क्स आउट. You have time to chill. Yeah. Little in life. Perfect, Anuj. It's been great having a conversation with you. I hope everybody here also enjoyed some brilliant insights. We always state a lot as mentors, as people who've been there, done that, but it always makes a lot more sense to hear it straight from the horse's mouth. Somebody who's doing it right now and just did it some time back. Hopefully, this motivates a lot of students out there to stay at it. Keep going, and it's not necessarily that it only motivates those preparing for CAT. It could motivate anybody who's preparing for UPSC कि यार क्या हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, keep giving it. You should never give up in life. Should always keep at it. And yeah, you don't know, one day stars will align, and nothing that you've done in your life ever goes to waste. It does come back someday or the other and help you in your life. So it was great chatting with you, Anuj. Thanks. And thanks a lot. Thank you very much. Thank you.